بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں چاچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا زاد نصیر سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ رافعہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں درار پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام متروک ہو گئی۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو نصیر کی ٹھیکرے کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ وہ جیسے طاق میں تھیں، یوں کہنا چاہیے کہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا، چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے عاصم سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ عاصم اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصے تک افسردہ رہی۔ بچپن سے نصیر کی محبت کا نقش دل پر تھا، جو مٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی شادی ہوگی ہے اور عاصم میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی، واقعی اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر نصیر سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ نصیر سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یاد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور نصیر کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہیں کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھ کو خبر نہ تھی شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا نصیر سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرہ پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور نصیر آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد نصیر نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا کہ وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجیب وحشت سی طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کہرام مچا تھا۔ آہ و بکا کی آوازوں سے میرا جی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھی پر جا بیٹھی، جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی۔ یہ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نصیر تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر عاصم آ گئے۔
दरअसल वो घर जाने के लिए खाला से चाबी लेने आए थे। खाला ने कहा कि चाबी राफिया के पर्स में है। राफिया कहाँ है? मेरे शोहर ने माँ से दरियाफ्त किया। अभी अभी छत पर गई है। ये सुनकर वो छत पर आ गए। ये देखकर बुत बन गए कि वहाँ आसम भी मौजूद था। आसम को सामने देखकर मेरे भी औसान ख़ता हो चुके थे। मैंने कोई जुर्म ना किया था, फिर भी खुद को मुजरम महसूस कर रही थी। आसम जानते थे कि मेरी बचपन से निस्बत नसीर से मिली थी। वो यही समझे कि मैं जानबूझकर छत पर इससे मिलने आई हूँ। लम्हा भर बाद वो आगे बढ़े और मुझको बाजू से पकड़कर साथ ले आए। उन्होंने मुझे बेमुश्किल पर्स उठाने दिया। घर आते ही मारने लगे, कुछ इस बुरी तरह के मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। आसम के अंदर ऐसा शख्स भी छुपा हुआ है। वो बिल्कुल हैवान लग रहे थे। वो शायद मुझको मार ही डालते अगर इस वक्त खाला ना आ जाती। उन्होंने बेटे को पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। मैंने दौड़कर अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली। जो वाक़या हुआ था कोई वाक़या ना था, महज इत्तेफाक था, मगर कोई कुछ और समझ रहा था और मैं नहीं समझा सकती थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मेरे औसान ख़ता हो गए। सोच भी ना सकती थी कि जिस शख्स मजाजी खुदा समझकर इसकी अताअत और फर्माबरदारी में उम्र गुजारने का अहद कर चुकी हूँ, वो मुझसे इतना बुरा सलूक भी कर सकता है। बड़ी देर तक खाला आसम को समझाती रही। आसम ने रात को नींद के लिए 2 ख्वाबावर गोलियां भी खाईं, तब कहीं जाकर सोए। इनके सो जाने के बाद खाला ने कमरे का दर खटखटाया और कहा, मैं हूँ। राफिया, दरवाज़ा खोलो। आसम सो चुका है। तब मैंने दरवाज़ा खोला। खाला ने पूछा कि क्या हुआ और ये कैसे हुआ। मैंने रोकर कस्में खाईं और बताया कि खाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझको वहाँ भीड़ में घुटन हो रही थी। जी मतलाने लगा तो छत पर चली गई। मुझको खबर ना थी कि वहाँ नसीर पहले से मौजूद है। खबर होती तो क्यों जाती। इसी लम्हे आसम भी वहाँ आ गए। उन्होंने समझा कि मैं नसीर से मिलने ऊपर गई थी। मुझको इसीलिए मारा है कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर से तल्लुक़ कायम है। खाला जी, मुझको अपने पैदा करने वाले की कसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं कभी इससे मिली ही नहीं। ये सरासर बहतान है। खाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया। मैं ज़ारो-कतार रो रही थी। इनको मुझ पर तरस आया। इस दिन यकीन आ गया कि खाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर खाला की जगह चच्ची या कोई और औरत सास होती तो मेरी बातों पर यकीन ना करती, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर ज़माने को सुनाती और मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन खाला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को समझाया कि मैंने इसको छत पर जाने को कहा था। इस बेचारी को क्या खबर थी वहाँ कोई और मौजूद है। इसे मतली हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि सांस बहाल हो जाएगा, घुटन दूर हो जाएगी। खाला ने मामला अपने ऊपर लेकर मेरा पूरा पूरा दिफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शोहर को यकीन ना आता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि शक्की मर्द के दिल से शक नहीं जाता। आसम ने भी वक्ती तौर पर यकीन कर लिया, लेकिन एक खलश दिल में थी, सो वो मौजूद रही। अब ज़िंदगी पहले जैसी ना रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर का ताना देते थे। इनके तानों ने मेरी ज़िंदगी को एक दहकता हुआ जहन्नम बना दिया। हर दम ये गम तड़पाने लगा कि इनको मेरी पाक दामनी का एतबार नहीं है। वो बात बात पर कहते थे कि तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद मेरी है या नहीं। मैं कैसे इसे कबूल करूँगा? किस तरह बाप का प्यार दे सकूँगा? जब कोई शोहर अपनी बीवी से ऐसी बातें करे तो ज़िंदगी अच्छी कैसे गुजर सकती है? बिलाशुबा मैं जिंदा शक की चिता में जल रही थी। रोज़ ही अपने नसीबों पर आंसू बहाती, 8-8 आंसू रोती थी और सोचती भी थी कि इस अजाब से तो बेहतर था मैं तलाक ले लेती। इस शख्स ने माँ के मजबूर करने पर मुझे पनाह तो दे दी थी, लेकिन अपनी औलाद को शक भरी नज़रों से देखता था। ये बात मेरे लिए सुहाने रूह थी। मैंने मेके जाना तर्क कर दिया, क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसम शक करते थे कि मेके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच इनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन गई थी। इस अहानत में सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे और ये मासूम फूल भी बाप की शक शुबे भरी नज़रों की तपस से मुरझा कर रह गया था। वो इसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत ना दे सके। इस अजाबनाक ज़िंदगी को जब 5 बरस गुजर गए, तब एक रोज़ मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मरना
तब एक रोज़ मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है, मरना तो कभी का ठहर गया था। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हाथ जबर सह रही थी। ये बच्ची बाप के घर की छत तले बड़ी हो जाए, बाप के साए में परवरिश पाएगी तो ज़माने के दस्तोबद से बच जाएगी। एक औरत कब तक शोहर की बदसलूकी के कातिल वार सह सकती है? आखिरकार तो जुल्म की एक हद होती है। एक रोज़ जबकि एक अजीज़ा की शादी में जाना था, मैंने आसम से कहा, बच्ची के लिए एक जोड़ा नए कपड़ों का ख़रीदना चाहती हूँ, इसको शादी में ले जाऊँगी। ये सुनकर वो यकदम गुस्से से आग बगोला हो गए। खुदा जाने किस सोच में तप रहे थे। चलाकर बोले, मैं क्यों लेकर दूँ? मेरी बेटी तो नहीं है, जिसकी है वही लेकर दे। मैं तो आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। आज मेरी गैरत भी तड़प गई। उफ मेरे खुदा, मैं कब तक ऐसी बेगैरती का जीवन जीती रहूँगी? आखिर कब तक ऐसी तलख कलामी बर्दाश्त करती रहूँगी? मुझको इस कमज़र्फ आदमी से छुटकारा पाना होगा। इस रोज़ जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत और ताकत ओढ़ कर आई। इसी वक्त फ़ोन करके भाई को बुला लिया और ये अल्फाज इनके सामने दोहराए जो आसम ने कहे थे। मैंने भाई को कहा, अगर तुम लोगों के पास मेरे और मेरी बेटी के लिए रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है तो बेशक मैं सड़क पर रहकर भीख मांग लूँगी, लेकिन अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूँगी। खुदा के लिए मुझको यहाँ से ले चलो। अब मैंने मज़ीद एक पल यहाँ नहीं रहना। भाई ने जाने कैसे मेरे हक़ में फ़ैसला कर लिया। कहा कि चलो मेरे साथ, ख़ानदान के बुज़ुर्ग खुद फ़ैसला करेंगे। अब तुम इस कदर ज़िल्लत में ज़िंदगी नहीं गुजारोगी और हम मर नहीं गए हैं, अभी तुम्हारे वारिस ज़िंदा हैं। खाला रोकती रह गई। भाई मुझे और मेरी बेटी लैला को साथ ले आए। अब्बू अम्मी ने ठंडे दिल से तमाम अहवाल सुना और फिर खाला खालू को बुलवा भेजा। इनसे हतमी बात की। उन्होंने बेटी की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने खाला और खालू के हमरा घर लौट जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो आसम को साथ लेकर आए। इसने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी, यकीन दहानी कराई कि अब मैं कभी राफ़िया को तंग ना करूँगा और अच्छा रखूँगा। अम्मी अब्बू ने पूछा, राफ़िया तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हारी मर्ज़ी है? मैंने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर आपने मुझे घर में नहीं रखना तो मैं दारुल मान चली जाती हूँ, लेकिन वापस आसम के घर न जाऊँगी। वालिदैन ने समझाया, रिश्तेदारों ने भी ज़ोर लगाया, लेकिन मैं न मानी, क्योंकि मैं आसम की फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी थी। इंसान जानबूझकर दहकती आग में नहीं कूदता। मैं भी ना गई, क्योंकि जानती थी कि जाऊंगी तो फिर वही होगा। शक का नाग आसम के अंदर घर कर गया था। जब मौका पाएगा डसेगा। अब्बू ने देखा कि वाकई राफ़िया नहीं चाहती, ज़बरदस्ती की तो जान से जाएगी। उन्होंने आसम पर दबाव डाला कि हमारी बेटी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। सास की दिली ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। मुझे ससुराल जाने से ही खौफ आता था। चंद दिन खामोश रही। फिर आसम ने एक औरत से मरासम इस्तवार कर लिए। माँ से कहा कि तन्हा ज़िंदगी कब तक गुजारूंगा, मैं शादी के बगैर नहीं रह सकता। दूसरी बीवी का इंतखाब कर लिया है, आप राज़ी हो जाइए वरना मैं खुद निकाह कर लूँगा। अब खाला से टटा गई। बेटा हाथ से जा रहा था और बहू वापस आने को राज़ी न थी। अम्मी से बात की, उन्होंने साफ कह दिया, जो शख्स अपनी औलाद को औलाद तस्लीम करने पर राज़ी नहीं, मशकूक निगाहों से देखता है, इसके साथ राफ़िया ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। मायूस होकर खाला ने बेटे का दामन थाम लिया। आसम ने अपनी मर्ज़ी की औरत से निकाह किया। अब्बू ने अदालत में मेरे लिए खुला का दावा दायर कर दिया। खुला के बाद मैं आज़ाद थी, लेकिन अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी ना करना चाहती थी। एक रोज़ चाचा और चाची आए और अम्मी अब्बू को मनाने आए थे, क्योंकि नसीर ने मेरे सिवा किसी से शादी से इनकार कर दिया था। इसने वालिदैन से कहा कि उम्र भर शादी ना करूँगा। अगर मेरी खुशी मंजूर है तो ताया से राफ़िया का रिश्ता तलब कीजिए, अब वो आज़ाद है। चाचा और चाची ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो अम्मी अब्बू राज़ी हो गए। उन्होंने मुझे भी समझा बुझाकर मना लिया। यूँ मेरी शादी नसीर से हो गई। इस शादी पर रिश्तेदारों ने खूब बातें बनाई, लोगों ने उंगलियां उठाईं। आसम ने ख़ानदान भर में प्रोपेगेंडा किया कि राफ़िया के अपने चचाजाद नसीर से गलत तल्लुकात थे। वो शादी के बाद भी इसने अपने साबका मंगेतर से तल्लुक़ ख़त्म नहीं किया था, रस्मों राज जारी रखी थी, तभी मैंने बीवी को छोड़ा है। बात सही हो या गलत, प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है। मुझको सब ने गलत समझा, हालांकि मेरा खुदा जानता है मैं गलत ना थी।
तभी शादी के बाद नसीर से मुलाकात तो क्या फ़ोन पर भी बात न की थी, मगर ज़बानों पर ऐसी बातें थीं कि सुनकर जी भर आता था। सच है, लोगों के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता, हर कोई अपनी सी कर गुजरता है। लोग जो कहें, ख़ानदान वाले जो समझें, मैं यही कहूँगी कि नसीर की मोहब्बत सच्ची थी, इसी वजह से इसको मैं मिल गई। मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा हूँ और ना अपने खुदा से। हाँ, इसकी मशकूर ज़रूर हूँ कि इसने तलाक के बाद मुझको एक नई प्यार भरी और खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी। चच्ची सोचती थी कि ये रिश्ता पहले कर लेती तो अच्छा था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इनका बेटा खुश है तो वो भी खुश हैं। हम पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह जाने आसम को कैसी ज़िंदगी मिली, हमको इससे क्या गरज, जिसने अपनी सगी बेटी से गरज ना रखी। ऐसे शक्की इंसानों से खुदा ही बचाए जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों की भी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहे इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।